हॅलो, गुड इव्हिनिंग एव्हरीवन. रेकॉर्डिंगचा आवाज आल्यानंतरच मार्क करायची अटेंडन्स. Okay, welcome everyone. So, am I audible to everyone? All of you? Okay, all right. Okay, so everybody is able to hear me. Okay, so we have completed one lesson. Okay, right? Or not? Have we completed any lesson yet? Okay, I gave you exercise on that, right? So, what is the progress of that? How much you have completed that exercise? I need answers from each individual. Okay, प्रत्येकाकडून मला answer हवंय. How much exercise you have completed? 50%, 100%, and when are you going to upload it on the Google Classroom? Okay, actually we haven't completed the lesson yet. Chapter complete झालेलं नाही. Only one question left. Aryan is saying, okay. Maitri is saying unable to upload tomorrow. Okay, okay. Do we have completed the exercise? I mean the lesson. आतापर्यंत लेसन कंप्लीट केलाय की आपण की नाही? No. Okay. Still lesson is not completed, but whatever we have covered, I asked you one question based upon that. Okay. And Aryan, you are going to complete only one less question left. Maitreya is unable to upload. Okay. Okay, is my voice audible to all of you now? I will just share my screen. So is it visible? Okay, ज्यांनी चॅप्टर कंप्लीट व्हायच्या अगोदरच एक्सरसाइज कंप्लीट केली त्यांना धन्यवाद. Okay, very clever people. See here, this is your lesson. Okay, historiography development in the West.
So in that we have completed that modern historiography. What are the characteristics of that? We have taken all these things in much details. After that, we started to study about notable scholars who were from the West, because we are studying the tradition of historiography in the Western countries. So in that we completed first René Descartes. Okay, how he was important according to for the historiography. Okay, what is his contribution? After that, we studied Voltaire, and here the term comes. Voltaire was the founder of the modern historiography. Why it is said that Voltaire was the founder of modern historiography? So I think after that, George William Frederick, we are going to study about him. He is one of the scholars. Okay, all right, no issues, friends. I have just given you two questions. Okay, तुमच्यासाठी मी just दोन questions दिले होते आन्सर करण्यासाठी. तुम्ही ते करा. अजून चॅप्टर काय आपला कम्प्लीट झालेला नाही. After that, I will post the full exercise, okay, on Google Classroom, and after that, you can complete it. Okay, but before that, try to revise everything that we have covered up to now. आता मला सांगा, आतापर्यंत आपण जे काही बघितलंय, जे काही शिकलोय, डू यू हॅव एनी प्रॉब्लेम रिगार्डिंग दॅट, एनी इश्यू, एनी डाऊट, एनी ओके, काही शंका वगैरे? ओके, नो. आपण रेन डेस्कार्टिस बद्दल बघितलं, त्यानंतर वॉल्टेअर बद्दल बघितलं. दिस टू आर इम्पॉर्टंट, ओके, बिकॉज दे इन्सिस्टेड ऑन दी verification, examination of the available historical documents before writing the history. Okay, and Voltaire said that along with all the deeds by your ancestors, you should also consider the economy, trade, culture, social conditions of that period in the historiography. Okay, that's why he is called as the founder of modern historiography. Now we'll start from the next notable scholar. So are you ready for that? Okay. Okay, all right. Now see next scholar who has given his contribution in the historiography and who was from the Western countries. Let's see, George William Friedrich Hegel. You can say Hegel in short form. Okay, George Hegel. Hegel was a German philosopher. He insisted that the historical reality should be presented in a logical manner. Okay, whenever we write down any story, then we write down it logically manner or chronological manner. It means we start from something, we end, but there is a sequence, there is a logic in the story. Okay, so likewise that he insisted that reality should be presented in a logical manner. हिस्ट्री म्हणजेच काय, आज आपण जी हिस्ट्री शिकतो ती पूर्वीच्या काळी एक रियालिटी होती. ओके, इट वॉज अ वास्तव, ते पूर्वीचं वास्तव होतं. ओके, so it should be written down or presented in a logical manner. To him, the timeline of historical events was indicative of progress. So according to that, Hegel, whatever timeline we are studying, okay, इतिहास लेखन करताना आपण जी एखाद्या कालखंडाविषयीची टाइमलाईन लिहितोय की येस 1960s, 1970s, 80s, for example, or ancient, medieval, and modern. So basically, see this timeline. What is timeline? In ancient, there is a different. Okay, after that, medieval comes. After that, modern history comes. So basically, what it understands, what it tells you, that in ancient periods, there was not very good services available for the people. But as time passes, as timeline changes, and we people come to medieval times, then many major reforms were happened in different regimes. Likewise, when we come to the modern,
then we know that modern means just now. Or how we are different from our ancestors, or how we are different from the people in the medieval times, and how we are different from the peoples in the ancient times. So basically, this is nothing but indicative of the progress. See, from ancient to up to now, there is a progress. He also thought that the presentation of history is bound to Indian change. experience. Who is newly added, I think, no? Sir, Okay, Kunal okay. Singh. Okay, all right. Kunal, welcome. Your first class, I think. Yes, sir. Okay, all right. Okay, I will explain in Hindi also. English and Hindi, okay? ओके, तो देखिए विलियम हेगल्स ने, जॉर्ज हेगल्स ने क्या बताया हमें? उसने बताया कि जो टाइमलाइन होती है हिस्ट्री की, मतलब क्या, जो प्राचीन इतिहास है हमारा, उसके बाद मध्ययुगीन इतिहास, मध्यकालीन, और उसके बाद जो आधुनिक इतिहास आता है, मॉडर्न, तो वो क्या रिप्रेजेंट करती है? वो हमारी प्रोग्रेस इंडिकेट करती है कि कैसे हमारे पूर्वजों से हम अलग है। ओके, कौन कौन सी नई चीजें हमने इजाद की है। ओके, इनका उनका हमने इस्तेमाल करना शुरू किया है। ओके, he also thought that presentation of history is bound to change over time as a new evidence will come forth. Okay, so basically he is telling that whatever the history is presented to us, okay, it is bound to change over time. मतलब ही वो क्या सजेस्ट कर रहा है? हेगेल हमें बता रहा है, हेगेल, कि जो भी हिस्ट्री आज तक हमने देखी, वो हमने किस पर लिखी है? आज तक हमारे पास जो एविडेंस थे, ओके, जो भी हमारे पास साक्ष्य थे, जो भी एविडेंस थे, डॉक्यूमेंट्स थे, उनके आधार पर क्या हो सकता है, आज से 10 साल बाद कुछ नए एविडेंसेस आगे आ सकते हैं बेसिकली। तो क्या होगा? वो नए एविडेंस में कुछ अलग जानकारी होगी, तो हम क्या करेंगे? हम आज की जो जानकारी हमें पता है हिस्ट्री की, तो हमें वो चेंज करनी पड़ेगी। बेसिकली इट इज टाइम बाउंड। ओके, दिस प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री इज बाउंड टू चेंज। मतलब क्या? वो चेंज हो सकती है जैसा ही टाइम आगे 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 जाता है, क्योंकि जब टाइम आगे जाता है, मे बी सम न्यू एविडेंसेस विल कम फोर्थ। कुछ नए जो सबूत है, ओके, नए कुछ डॉक्यूमेंट से वो अगर आगे आए, उनको स्टडी करके हमने वो प्रेजेंटेशन में जो कुछ हिस्ट्री में हमने देखा है वो चेंज करना पड़ेगा। ऑलराइट, with Hegel's philosophy, many scholars were convinced that historical methods were not of lesser quality, though they differed from scientific methods. Okay, so basically हेजल ने क्या बताया कि हिस्ट्री का जो हम देखते पढ़ा है अब तक, वो क्या करता है, हमारा जो प्रोग्रेस है पुरातन काल से आज तक की हमारी जो प्रोग्रेस होती है वो इंडिकेट करती है। ओके, और उन्होंने ये भी बताया कि हमने जो भी हिस्ट्री देखी है, पढ़ी है, लिखी है, वो टाइम के अनुसार चेंज हो सकती है, क्योंकि जैसा ही टाइम बीतता है उसके साथ अलग अलग सबूत भी सामने आते हैं, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स भी सामने आते हैं। ओके, so basically this is also one of the scientific methods, okay, we can say. So with Hegel's philosophy, many scholars were convinced that historical methods were not lesser quality, though they differed from the scientific methods. So basically, Hegel is not saying about any scientific method. He just saying a philosophy. वो एक तत्वज्ञान बता रहा है, एक विचार बता रहा है अपना, कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा प्रेजेंटेशन होता है, वो टाइम के हिसाब से चेंज हो सकता है, लाइक वाइज दैट। सो उसके बाद में हमें पता है कि हिस्ट्री लेखन जो होता है, इतिहास लेखन, उसमें भी साइंटिफिक मेथड्स का हम यूज करने लगे। तो कुछ साइंटिस्ट को पता चला, कुछ जो स्कॉलर्स थे, उनको लगा कि यस, हेगेल ने जो कुछ हमें बताया है वो साइंटिफिक तरीके से नहीं है, लेकिन वो काफी सही है। ओके, इट इज वी कैन से इट इज ट्रू। ओके, इट इज रिलेटेबल, though it is not a scientific method. All right. The collection of his lectures and articles is published in a book entitled Encyclopedia of Philosophical Sciences.
सो बेसिकली जॉर्ज हेगेल जो है उन्होंने एक बुक लिखी, एक किताब लिखी है, उसका नाम है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस। सो इस बुक में उन्होंने उनके जो लेक्चर्स उन्होंने जहां जहां दिए हैं, तो उनको उन्होंने उस पर लिखा है। ओके, एंड वेन एवर इफ यू फाइंड आउट दैट बुक एनीवेयर, if you search in that book, you will get the collection of his lectures and articles, okay, in that book. His book Reason in History is well known. One another book is written by George Hegel, that is Reason in the History. So this is also very well known book by the George William Frederick Hegel. Okay, so this is all about Hegel. And Hegel's what is his timeline, we can say lifespan 1770s to 1831, means almost 60 years, 60 to 61 years he lived on it, and after that he passed away. So he was a German philosopher. He insisted on historical reality should be presented in logical manner. To him, timeline of a historical event was indicative of progress. उसके through progress हमें दिखाई देती है. He also thought that presentation of the history is bound to change. मतलब वो चेंज हो सकती है, इट इज बाउंड टू चेंज ओवर टाइम। जैसे टाइम आगे आगे बीतता है, जो भी हिस्ट्री हमने पढ़ी वो चेंज हो सकती है, बिकॉज एविडेंस वुड कम फॉर्थ, न्यू एविडेंस आगे आ सकते हैं, न्यू सबूत आगे आ सकते हैं। विथ हेगेल्स फिलोसॉफी मेनी स्कॉलर्स वर कन्विंस्ड दैट हिस्टोरिकल मेथड्स वर नॉट लेसर क्वालिटी। ओके, हमें पता है पुरातन काल में जब भी हिस्ट्री लिखी जाती थी वो हिस्टोरिकल मेथड होते थे उनके, वहां पर कोई भी कार्बन डेटिंग टाइप कोई भी साइंटिफिक मेथड्स यूज नहीं करते थे। लेकिन हेगेल का जो फिलोसॉफी है उसको देख के, उसको सुनने के बाद जो कुछ मैनी स्कॉलर्स थे बहुत ज्यादा, ओके, तो वो भी कन्विंस हो गए, उनको भी लगा यस हेगेल सही कर रहा है। अगर उन्होंने साइंटिफिक मेथड का यूज नहीं किया है तो भी वो काफी सही है। ओके, सो इट इज ऑफ नॉट लेसर क्वालिटी, वो कम दर्जे के नहीं है। तो उसी के बारे में, इसी हिस्ट्री के बारे में उन्होंने अपने कुछ लेक्चर्स दिए हैं, कुछ आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं। तो उनके किस बुक में पब्लिश किए हैं? एनसाइक्लोपीडिया फिलोसॉफिकल साइंसेस। ऑल्सो ही हैज वन अनदर बुक रीजन इन हिस्ट्री। ओके, दिस इज वेल नोन अबाउट द Hegel's writings. So, is my voice clear to all of you? Okay, Kunal Singh, Kunal, don't worry, I will explain in Hindi. Okay, English and Hindi. Okay, sir. Okay, okay, all right. अगर किसी को कोई डाउट है, कोई शंका है, ओके, तो तुरंत यहाँ पर राइट डाउन कीजिए। मैं बार बार में देखता रहता हूँ, ओके, इधर। तो जब भी मैं चेक करूंगा तो मैं आपका क्वेश्चंस यहाँ पर देखूंगा। एक्चुअली आदित्य, डोंट यू अंडरस्टैंड हिंदी? आदित्य कवर, आदित्य तुला हिंदी समजत नाही का? ओके आदित्य, एक्चुअली इन 3 लैंग्वेज में अगर मुझे बताना पड़ेगा तो कितना देर लगेगा बताओ? ओके, अभी हिंदी सबको आती है, मुझे पता है। ओके, तो मैं अंग्रेजी और हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक अबाउट द हेगेल। It is good to know this. Okay, see here. So basically, this is very important. Okay, because on this paragraph or on this topic, many years, okay, this question is asked in the exam that explain dialectics. What is dialectics? So let's see here. According to Hegel, grasping the meaning of any event happens in terms of two direct opposite. मतलब क्या हो, इसका मतलब क्या है? ग्रास्पिंग द मीनिंग ऑफ एनी इवेंट, जब भी कोई घटना घटती है, ओके, और घट चुकी है, वी कैन से, ओके, तो उसका मीनिंग जो है, उसका जो मतलब है, हम 2 टर्म्स में पता लगा सकते हैं। वो क्या हुए? 2 डायरेक्ट अपोजिट टर्म्स। मतलब क्या? सपोज
Okay, all of you know about the Chhatrapati Shivaji Maharaj. Okay, that Kondana Fort. Tanaji Malusari fought for Kondana Fort. So this is one event. Now you have to find out the meaning of this event. You have to study about this event, and you have to write the history about that. So what one should do? You should form a question, two direct opposite questions. First question is whether this event happened. Okay, this is one side. Second side is this event is not happened, and first one is this event is happened. So let's see here. They are telling the same thing through this sentence. इस वाक्य से वो यही बता रहे हैं कि अगर किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट का आपको मतलब समझना है, उसके बारे में जानकारी लेनी है, तो जो डायरेक्ट अपोजिट होते हैं उसके टर्म्स में आप उसे समझ सकते हैं. सो देखिए, ह्यूमन माइंड कैनॉट अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ दैट इवेंट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द अपोजिट्स. ओके, मतलब क्या, एखादी जो भी एखाद कोई घटना घटी है उसके बारे में हमारा जो माइंड है, किसी भी आदमी का माइंड, वो उसे पूरी तरह से जान नहीं सकता अगर वो उसके अपोजिट जो साइड है, उसकी जो दूसरी बाजू है, ओके, वो चेक नहीं करता. ओके, हम बोलते हैं ना कि दोनों साइड चेक करनी चाहिए. ओके, किसी भी जजमेंट पे आने आने से पहले, किसी भी कंक्लूजन पे आने से पहले, ओके, किसी भी ओपिनियन पे आने से पहले हमें उस बारे में दोनों बाजू से जानकारी लेनी चाहिए. और वी हैव टू थिंक ऑन बोथ sides. For example, true or false. Whether that event or that something we know it is true or false. We cannot go just it whatever we have it is true. Or we also cannot go that yes this document we have but it is false. No. You have to think on both the ways, true and false also. Also good and bad. Likewise that. In order to understand the true nature of a thing, one needs to know both true and false. Similarly, good and bad. Okay, they are saying the same thing. वो वही बात बता रहा है कि in order to understand true nature of a thing, किसी एक बात का आपको सच्चा नेचर पता करना है, उसका सच्चा साइड पता करना है, तो हमें दोनों साइड देखने पड़ेंगे, एक सच्ची साइड और एक ट्रू और फॉल्स, दोनों साइड हमें देखनी पड़ेगी. वैसे ही अगर किसी के बारे में हम भला बुरा कह रहे हैं तो हमें उसकी दोनों साइड देखनी पड़ेगी, उसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा. ओके, दिस मेथड ऑफ एनालिसिस व्हिच इज बेस्ड ऑन अपोजिट्स इज नोन एज डायलेक्टिक्स. नाउ कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय डाई? Okay, is the voice now clear? Yes, sir. Okay, all right, all right. Okay, you can write down in the chat box, okay, without speaking in a mic, okay? Okay, for some, I think there is some problem, okay? What they can do, just refresh your network and rejoin again. Okay, basically, have you heard about di? Mono, di, tri, tetra, penta, likewise that? Yes, di means basically two. It is related to two. Okay, so that's why dialectics, we are going to study about dialectics. Okay, here. This method of analysis, which is based on opposites, is known as dialectics. Opposite means true, false, good, bad. Okay, likewise that. So this method of analysis is based on two direct opposites. So what is two direct opposite? Whether that event is true or false, whether that person or that king was good or bad. Okay, likewise that. So we do the analysis based upon two opposites. That's why it is called as dialectics. Okay, in this method a theory is proposed at the beginning which is called as thesis. thesis का मतलब क्या होता है? एक सिद्धांत बनाना. ओके, एक सिद्धांत बनाना, एक उसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करना. ओके, हम क्या करते हैं पहले? इन दिस मेथड theory is proposed at beginning which is called thesis. एक thesis हम बनाते हैं. Then another theory is proposed.
For example, we will take one example of that Kondana, okay, which was fought by the Tanaji Malusare, okay, to take over that fort. So what we will do, we will propose one theory first of all. What will be that theory? Yes, Tanaji Malusari was the main, we can say Mawla, okay, in that fight, and this event happened in the Chhatrapati Shivaji Maharaj period. Okay, this is the thesis we proposed. Now let's take the another theory which is proposed, which is contrary to this theory, this thesis. Now contrary to first theory, what can be that? कि तानाजी मालुसरे वहां पर नहीं थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के जो कालखंड था उसमें कोंढाना किला के बारे में कुछ नहीं। ओके, तो ऐसे दो थेसिस हमने दिखाए। तो जो दूसरा थेसिस होता है उसको कहते हैं एंटी थेसिस। आफ्टर अ थorough logical discussion of both, a new thesis is proposed which includes the gist of both the thesis and the antithesis. Now what will we do? Okay, there are two persons. One person proposed thesis. He is saying that yes, all things are true about the Kondana fight. Okay, or about that war. Another person comes, he comes with antithesis. Okay, that this is not true. This is false. Now what will do? They both people will interact with each other. They will make the thorough analysis. They will understand to each other's thesis. Now they will come to a conclusion. Okay, and they will come with a new thesis now. And this new thesis will have properties of both the thesis and antithesis. Okay, उन दोनों के अंदर से जो जो सच चीजें है, जो जो सही चीजें है, वो हम लेंगे और उसके आधार पर हम अलग हमारा सिद्धांत बनाएंगे कि जो सिद्धांत सही होगा और उसमें दोनों साइड की चीजें आएंगी कि जो चीजें सही है जिसके हमारे पास प्रूफ्स है। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट न्यू थेसिस। ओके, this process of arriving at a new thesis is called synthesis. ओके, ये जो प्रोसेस है जिसमें हमने दोनों लोगों ने डिस्कशन किया, थीसिस वालों ने भी और एंटीथेसिस वालों ने भी, और वो एक कंक्लूजन पे आए, उन्होंने एक कंक्लूजन बनाया, अपना एक ओपिनियन बनाया और वो ओपिनियन उसने हिस्ट्री के तौर पर लिखा। ओके, तो ये जो प्रोसेस है कमिंग टू अ थीसिस, ओके, अराइविंग एट अ न्यू थीसिस is called as synthesis. Okay, all right, and this was proposed by the Hegel, that is dialectics. So do you understand this? What is dialectics and what is synthesis? Method of analysis which is based on two direct opposite is called as dialectics. Okay, because it is based upon both two sides of the same thing. All right, okay, I hope ये क्लियर हो गया सबको। अगर फिर भी कल आपने पढ़ा और कल आपको कुछ डाउट आया उसमें, तो मुझे आप पूछ सकते हैं अगले लेक्चर में, या आप हमें पूछ सकते हैं गूगल क्लासरूम पे। ओके, so friends, this was about the Hegel. So Hegel also was a very important scholar from the Germany. Germany is in the Western countries in Europe. Now next scholar, next person who has contributed in the historiography, इतिहास लेखन की जो भी कुछ फील्ड होता है वो, ओके, उसमें इसने अपना योगदान दिया है, अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। Okay, Leopold von Rank. We can say him Rank. Okay, so Rank's period is after the 1975 to 1886. Okay, he almost 90 years. Okay, he lived almost 90 years. Now see, historiography of the 19th century was greatly influenced by thoughts of Leopold von Rank
of Berlin University. Now where is Berlin? Berlin is in Germany. Okay, now see, जर्मनी में, यूरोप में और जर्मनी में उस वक्त जो कुछ हिस्टोरियोग्राफी हो रही थी, इतिहास लेखन किया जा रहा था, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, डिफरेंट प्रूफ्स, डिफरेंट एविडेंसेस हिस्ट्री के बारे में कलेक्ट किए जा रहे थे, और उसको एनालिसिस करके जो हिस्ट्री लिखी जा रही थी, उसमें जो रिसर्च हो रहा था, तो उस पे लियोफर्ड रैंक की जो विचार थे उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था. ओके, हिस्टोरियोग्राफी दैट वाज टेकन प्लेस इन 19th सेंचुरी, 1900 शतक. ओके, 19वीं शताब्दी जो थी, ओके, जो शतक था, उसमें जो कुछ हिस्टोरियोग्राफी यूरोप में हुई, जो कुछ इतिहास लेखन यूरोप में हुआ, तो उस लेखन पे रैंक का जो थॉट्स थे उनका बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है. ओके, एंड ही वाज फ्रॉम द बर्लिन यूनिवर्सिटी. ही स्पोक अबाउट द क्रिटिकल मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च. उन्होंने किसके बारे में हमें बताया? उन्होंने बताया क्रिटिकल मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च. जो भी हिस्ट्री हमें लिखनी है उसके बारे में जो कुछ हम सर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, ओके, डॉक्यूमेंट्स, एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं, ओके, उसे हमें क्रिटिकली मेथड से करना चाहिए. ओके, वी हैव टू एग्जामिन एवरीथिंग क्रिटिकली. बहुत चिकित्सकपने, बहुत ही ज्यादा हमें उसे चेक करना चाहिए. ओके, सो उन्होंने बताया कि हमें क्रिटिकल मेथड इज इंपॉर्टेंट इन हिस्टोरिकल रिसर्च. ही पुट एम्फेसिस ऑन द utmost importance of information gathered through original documents. अब देखिए, जब भी किसी बारे में इतिहास हम लिखते हैं, ओके, तो हम पहले क्या देखते हैं कि उस घटना के बारे में कोई ओरिजिनल उस वक्त का पुराना, पुरातन डॉक्यूमेंट मौजूद है कि नहीं. ओके, जो भी कुछ घटनाएं घटी है जिसके बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं, उसका हमें अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिलता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो ही एम्फेसाइजेस, उन्होंने किस पर ज्यादा भर दिया, महत्व दिया? उन्होंने बहुत ज्यादा एम्फेसिस और इम्पोर्टेंस गिवन टू इंफॉर्मेशन गैदर्ड थ्रू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स. जो भी सही, जो भी पुराने, ओके, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से उनके जरिए अगर हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है तो वही सबसे सटीक इंफॉर्मेशन है. दैट इज द ओनली ट्रू इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू लियोपोल्ड रैंक. He also stated that all types of documents associated with a historical event need to be examined with greatest care. See here, he is saying that whatever the documents we are studying, whatever the documents we are making research, okay, whatever the document, historical document we are studying, okay, we are reading, we are making research on that, we should examine them, these documents, with greatest care. खूब जास्त काळजीपूर्वक, ओके, बहुत ज्यादा केयर करके हमें वो डॉक्यूमेंट्स पहले एग्जामिन करने चाहिए, मतलब चेक करने चाहिए कि ये सही है या गलत है. उस अगर एक बार हमें पता चला कि नहीं ये डॉक्यूमेंट सही है, तभी हम आगे जा सकते हैं, हिस्ट्री की एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं और उस घटना के बारे में हम as a history लिख सकते हैं. Okay, so he gave importance on that. He believed that with this method it was possible to reach the historical truth. अभी इसने जो मेथड बताई कि हमें क्या करना चाहिए, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के जरिए हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है वही हमें यूज करनी चाहिए, और जो भी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन हम देख रहे हैं उसे हमें और ज्यादा केयर से, ओके, एग्जामिन करनी चाहिए. उसकी हमने एक प्रकार से बहुत ज्यादा रिसर्च करना चाहिए. ओके, और व्हेन वी डू दिस, जब भी हम दिस मेथड का यूज करते हैं, इस मेथड का यूज करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, जो हिस्ट्री का एक्चुअल ट्रूथ है, जो सच्चाई है उस घटना के बारे में, तो हम उस सच्चाई तक पहुंच सकते हैं अगर हमने ये मेथड यूज की. तो
ही क्रिटिसाइज्ड इमेजिनेटिव नरेशन ऑफ द हिस्ट्री। मतलब क्या, कुछ हिस्टोरियंस ऐसे भी होते हैं कि वो क्या करते हैं, अपने मन की उसमें डाल देते हैं, उसका कोई एविडेंस नहीं है, उसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन अपने मन की बात हिस्ट्री में लिख देते हैं। उसे हम कहते हैं फेक। ओके, फेक इंफॉर्मेशन, गलत हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, गलत हिस्ट्री लिखी जाती है। तो जो रैंक है स्कॉलर, उन्होंने इस बात का बहुत क्रिटिसाइज किया, बहुत टिक्का की लोगों पे इस बारे में कि गलत इंफॉर्मेशन, इमेजिनेटिव इंफॉर्मेशन लिखनी नहीं चाहिए, अपने मन से कुछ लिखना नहीं चाहिए। अगर उसका प्रूफ नहीं है तो वो मत लिखिए, लेकिन अपने मन से हिस्ट्री समझ के कुछ भी मत लिखिए और लोगों को मत दीजिए, गलत हिस्ट्री मत पढ़ाइए। कलेक्शन ऑफ हिज आर्टिकल्स इज पब्लिश्ड इन 2 बुक्स। अब देखिए, इन्होंने भी 2 बुक्स लिखे हैं, और जो इनके जो लेक्चर से, आर्टिकल से, इनके जो थॉट है, इनकी जो मेथड है, वो कहाँ पब्लिश की गई है? 2 बुक्स में। First is theory and practice of history. Okay, and second book is the secret of world history. Basically, these are 2 books written by the Rank. Theory and practice of history, the secret of world history. So this is about the Rank. Okay, Rank was from the Berlin University. He gave the importance on collecting the information from original documents. Also, he also stated that whatever the documents you have for the research, for the study, you have to examine them critically, you have to examine them with greatest care. Okay, all right. Am I audible to everyone? Emphasis मतलब importance. इम्पॉर्टन्स किंवा एखाद्या गोष्टीवर जास्त भर देणे. अंडरस्टैंड? एम्फेसिस मीन्स इम्पोर्टेंस, गिविंग इम्पोर्टेंस, और वी कैन से उस बात पर बहुत ज्यादा हमें भर देना है. ओके, ऑल राइट. तो हम अब अगला जो स्कॉलर है, इस स्कॉलर के बारे में आप सबने सुना होगा, कार्ल मार्क्स. सुना है क्या आपने कार्ल मार्क्स के बारे में? यस, सर्वाधिक महत्वाचे. आदित्य एकदम परफेक्ट, सर्वाधिक महत्वाचा आहे. ओके, ओके, आदित्यने कार्ल मार्क्स बद्दल ऐकलंय. एनीबडी एल्स हु हर्ड अबाउट द कार्ल मार्क्स? कार्ल मार्क्स के बारे में ओके, सबको पता है आई थिंक. आर्यन, यू नो दिस. हु इज एल्स? अपेक्षा, सीमा, वैष्णवी, हर्षवर्धन, धनश्री, पीयू, आदित्य. Am I audible to all of you? Because you are not writing anything in the comment box. Okay, all right. Okay, हम अब कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे. देखिए, ये जो कार्ल मार्क्स है वो कब आया था इस पृथ्वी में, हमारी इस गोला पे कब आया था? 1818 में उसका जन्म हुआ, 1883 में उसका मृत्यु हो गया. मतलब ऑलमोस्ट 63 to 65 ईयर्स ये अपना कार्यकाल उन्होंने कंप्लीट किया. यहाँ पर आकर वो रहे और अपना कंट्रीब्यूशन दिया लोगों के लिए. देखिए, इन द लैटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब क्या, जो 19वीं सदी थी उसकी जो लैटर हाफ था, मतलब क्या, 1850 से 1900 तक का जो पीरियड था. क्योंकि देखिए 1818 और 1883, मतलब कार्ल मार्क्स तभी अपने स्टडी करके और अपनी पढ़ाई करके वो कंट्रीब्यूशन दे रहा था. लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, 1850 से 1900 तक का जो 50 साल का पीरियड है. ओके, अ न्यू स्कूल ऑफ थॉट अरोज, कीपिंग इन व्यू द न्यू थेसिस formulated by Karl Marx.
अब देखिए, अलग अलग विचार अलग अलग कार्य में अलग अलग समय पे उत्पन्न होते रहते। अभी क्या हुआ, 1850 के बाद जो लेटर हाफ सेंचुरी है, 19th सेंचुरी है, ओके, उसमें कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ। उन्होंने पढ़ाई की और उन्होंने अपना एक अलग थॉट बनाया, लोगों के एक अपना अलग थॉट बताया। न्यू स्कूल ऑफ थॉट्स, एक नया विचार जन्म हुआ। ओके, कीपिंग इन व्यू ऑफ न्यू थेसिस फॉर्मुलेटेड बाय द कार्ल मार्क्स। तो बेसिकली कार्ल मार्क्स ने जो थेसिस हमें बताए, जो सिद्धांत उनके बताए, जो विचार उनके बताए, उनके विचारों से एक नया स्कूल ऑफ थॉट जन्म हुआ। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, हिस्ट्री वॉज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। मतलब क्या, हिस्ट्री सिर्फ ये नहीं है कि आप किस राजा के बारे में लिखेंगे, आप किस युद्ध के बारे में लिखेंगे, ओके, किस समय में किस राजा हुआ, किस उसको कितने पुत्र थे, उसका कहाँ कहाँ पर शासन था। वो ये हुई एब्स्ट्रैक्ट हिस्ट्री और ये हुआ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। सो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, हिस्ट्री वाज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। कार्ल मार्क्स के मुताबिक हिस्ट्री जो है, हमारा जो इतिहास है, वो सिर्फ इतना ही नहीं है जो हम लिखते हैं एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज पे, राजा के बारे में, उसके कालखंड के बारे में। सिर्फ इतना इतिहास नहीं होता। इट वॉज अबाउट लिविंग पीपल। ये जो इतिहास है, तो वो उस वक्त आदमी, जो समाज था, उस वक्त जो लोग रह रहे थे, उनका जो रहन सहन था, उनकी जो सोसाइटी थी, जो समाज था उस वक्त का, उनकी उस वक्त की जो सिचुएशन थी, ओके, जो जाति व्यवस्था थी, तो वो सब उसमें आता है। ओके, तो हिस्ट्री उनकी भी होनी चाहिए, उस चीजों की भी होनी चाहिए, न कि सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हमें इतिहास में पढ़ाई जाए और इतिहास में लिखी जाए। अकॉर्डिंग टू इट, इट वाज अबाउट लिविंग पीपल। ओके, ये जो हिस्ट्री थी, ये जो हमारे लोग उस वक्त रह रहे थे समाज में, तो उनके बारे में जो लिखा जाता है वो हिस्ट्री होती है। Human relationship are shaped by the fundamental needs of people and the ownership, as well as the nature of relevant means of production to meet those needs. Now tell me that what are the needs of people living in historical times? उनको खाना, पीना, रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़ा, ओके, उनके बच्चों के लिए जो शिक्षा मिलनी चाहिए, ओके, जो खेती उस वक्त होती थी, खेती के लिए जो कुछ संसाधन चाहिए थे, जो कुछ सोर्सेस चाहिए थे, ओके। तो ये क्या हो गया, ह्यूमन की जो रिलेशनशिप है आपस में, ये चीजें पूरी करने के लिए लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की मदद लेते हैं। उस वक्त भी लेते थे, इतिहास में भी लेते थे, पास्ट में भी लेते थे। इसी वक्त, इसीलिए लोगों में कुछ रिलेशनशिप बनती थी, ओके, उन पे एक रिलेशनशिप शेप लेती थी। मतलब क्या, उन लोगों में एक संबंध आकार लेता था, ओके, बिकॉज लोगों को एक दूसरे की फंडामेंटल जो नीड है तो वो पूरी करनी थी एक दूसरे के जरिए। सो ह्यूमन रिलेशनशिप्स वेयर आर शेप्ड बाय फंडामेंटल नीड्स ऑफ पीपल। लोगों की जो नीड्स होती है अलग अलग तरह की, तो जो अलग अलग नीड्स है और उनकी जो ओनरशिप है। अब देखिए, कुछ चीजें लोगों की अपनी मालिकाना हक होता है, ओके। अगर वो दूसरों को यूज करनी चाहिए तो क्या करेंगे, हम आपस में रिलेशन अच्छे बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जब हम नीड में होंगे तो हम उनकी चीजें इस्तेमाल करेंगे। सो बेसिकली, बिकॉज ऑफ दिस फंडामेंटल नीड एंड द ओनरशिप, ह्यूमन रिलेशनशिप टूक शेप इन द पास्ट। लोगों ने अपने आप में एक संबंध बनाने शुरू कर दी, as well as nature of relevant means of production to meet those needs। अभी ये जो नीड्स है लोगों की उस वक्त की, तो वो पूरी करने के लिए कुछ मीन्स होते हैं, कुछ वेज होते हैं उस वक्त के, ओके। उस वस्तुओं का उत्पादन करने, उस वस्तुओं का निर्यात करने और वी कैन से उनका व्यापार करने में, ओके, जो कुछ होता था, उसकी वजह से लोगों में एक रिलेशनशिप पैदा होती थी, उनका एक आकार लेता था, लोगों में आपस में कुछ संबंध बनते थे। ये किसका मतलब था, ये किसका विचार था, ये कार्ल मार्क्स का विचार था। उसके मुताबिक क्या,
आपने सिर्फ इतिहास लिखा जो है वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, वो किस पर होना चाहिए, तो जो लिविंग लाइफ थी उस वक्त की, ओके, उस वक्त की जो ह्यूमन लाइफ थी, जो वहां पर रह रहे थे, उनके आपस में जो संबंध थे, ओके, वो संबंध और उनकी नीड्स जो थी, वो नीड्स वो कैसे फुलफिल कर सकते से आपसी संबंध से, वो सब चीजें हिस्ट्री में लिखनी जरूरी है। ओके, जो व्यापार हुआ करता था उनके अंदर, और किसी के पास कोई चीज है तो उसका ओनर है, वो किसी और को देना चाहता है तो उसमें प्रॉपर संबंध होनी चाहिए। ओके, सो लाइकवाइज दैट द accessibility of this means to different state of the society may not be equal। अब देखिए, कुछ लोग होते हैं जमींदार लोग, कुछ लोग होते हैं कुनबी मजदूर, ओके, मजदूर लोग। अभी होता क्या है, पुरातन काल में भी क्या था, हिस्टोरिकल जो हमारा पीरियड था उसमें क्या था कि जो जमींदार लोग थे उनके पास सारी संपत्ति हुआ करती थी, तो उनको किसी की नीड नहीं थी। ओके, उनके पास ओनरशिप हुआ करती थी। बट जो मजदूर लोग हैं उनको, इस जो जमींदार लोग हैं उन पर डिपेंड रहना पड़ता था अपने जो नीड से, अपने जो ओके, जो कुछ चीजें हैं वो पूरी करने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए, कपड़ों के लिए, ओके, डिफरेंट अदर नीड्स, तो वो पूरी करने के लिए उनके पास कोई संसाधन नहीं थे। तो बेसिकली उन्होंने यही बताया है कि ये जो संसाधन होते हैं, एक्सेसिबिलिटी ऑफ दिस मीन्स, संसाधन मीन्स दिस वेज टू कंप्लीट द नीड्स, टू फुलफिल द नीड्स, इट वाज नॉट इक्वल इन द सोसाइटी। अभी सोसाइटी में उस वक्त क्या थे, मजदूर थे फॉर एग्जाम्पल और जमींदार थे, तो मजदूरों के पास नहीं थे, मतलब वहां पर इनइक्वालिटी थी। जो भी संसाधन थे लोगों के लिए जीने के लिए, उनकी आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए, तो वो समाज में नहीं था। स्टार्ट ऑफ सोसायटी मतलब समाजाचा जो वर्ग आहे, समाजाचं जे लोक राहतात, ओके, तर त्यामध्ये या सर्व गोष्टींचं समान वितरण नव्हतं, त्यांचं डिस्ट्रीब्युशन प्रॉपर नव्हतं, तिथे इनइक्वालिटी होती। This inequality causes the division of the society into two classes. Okay, because of that, what happens? There are now two classes. One is Jamidar people, another is Mazdur or worker, we can say. Okay, because of this inequality, you can easily see that some people having land at their ownership. Okay, some people don't have even to eat. So because of that, the society gets divided into basically two parts. Okay, two classes। समाज का दो वर्ग में रूपांतर होता है। ओके, लीडिंग टू क्लास स्ट्रगल। उसमें से क्या होता है, एक क्लास हमेशा दूसरे क्लास से स्ट्रगल करता रहता है। अभी जमींदार लोग क्या करेंगे, वो जो मजदूर लोग हैं उनसे उनको दबाने का काम करेंगे, और जो मजदूर लोग हैं वो क्या करेंगे, हमारी मांगे पूरी करो, इसके लिए वो स्ट्राइक्स करेंगे, और उसके लिए वो अपनी जो कुछ आवश्यकता है वो जमींदार लोगों से पूरा करने की कोशिश करेंगे। इससे उन दोनों के जो क्लासेस है उसमें स्ट्रगल शुरू होगा, एक संघर्ष शुरू होगा। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, ह्यूमन हिस्ट्री इज हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, एज द क्लास that owns the means of production economically exploits the rest of the classes। Now see, according to Marx, what Marx is saying, Marx is saying basically history is not just abstract ideas, history is the class struggle। okay, history is nothing but the history of class struggle। आज तक ये जो कुछ संघर्ष समाज में होता आ रहा है, समाज के दो वर्गों में ये जो संघर्ष इनइक्वालिटी की वजह से होता आ रहा है, तो वो उसके बारे में अगर हम लिखे तो उसे हिस्ट्री कहा जा सकता है। ओके, तो क्या होता है उस स्ट्रगल में, दी ओन्स द क्लास दैट ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अभी जो क्लास है समाज का एक, जो समृद्ध है, जो श्रीमंत है, वी कैन से, विच इज रिच, हु हैज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अभी देखिए, हमें अगर धान्य का प्रोडक्शन करना है, धान का, तो उसके लिए जमीन चाहिए। अभी वो जमीन है जमींदार के पास, मतलब प्रोडक्शन का जो मीन है वो जमीन है, और वो जमीन है जमींदार के पास। अभी वो जमींदार क्या करेगा, जिसके पास जो जमीन नहीं है, जो मजदूर लोग है, इधर लोग है, और
अलग लोग हैं उनको वो एक्सप्लॉइट करेगा, उनका वो शोषण करेगा। एक्सप्लॉइटेशन मतलब शोषण करेगा उसका, कि जिसके पास कुछ जमीन वगैरह नहीं है, मतलब जमींदार छोड़ के बाकी के जो कुछ लोग रहते हैं तो उनको वो एक्सप्लॉइट करेगा। दास कैपिटल, treatise written by him, is the most referred book all over the world. Now, Das Capital is one of the book that is written by the Karl Marx. Okay, and that book is most referred book all over the world. मतलब दुनिया भर में अगर किसी को रिसर्च करना हो हिस्ट्री के बारे में, तो कार्ल मार्क्स की ये जो दास कैपिटल बुक है, डैश कैपिटल यू कैन से, दिस बुक इज रेफर्ड, इसी बुक का हम सब इस्तेमाल करते हैं। जो कुछ बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, और नॉट साइंटिस्ट बट हिस्टोरियंस होते हैं, तो वो सब इसी बुक को रेफर करते हैं। ओके, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू about the Karl Marx? Okay, Aditya has watched, okay, has read that book. Anybody having any doubt in this? Karl Marx. Karl Marx said that history is not about abstract ideas. History is about the living life of the humans. And he also told that there are means of production in the society. समाज में क्या होते हैं? संपत्ति उत्पन्न करने के जो कुछ साधन होते हैं, संसाधन होते हैं, मीन्स होते हैं, वो समाज के कुछ वर्ग के पास होते हैं, क्लास के पास। और जो गरीब क्लास है वो बहुत स्ट्रगल करता रहता है। तो इस दोनों क्लास में जो स्ट्रगल, जो संघर्ष शुरू होता है, उसकी वजह से जो कुछ हिस्ट्री हमने देखी है तो उसे हिस्ट्री कहा जाना चाहिए उसके हिसाब से। Now, how much topic is remaining in annual school, feminist historiography, Michael Foucault, or we can say Foucault. Okay, small portion of this chapter is remaining, but I don't think today we can complete this. Okay. Now, annual school, feminist historiography, and Michael Foucault we will see in the next lecture or another lecture. Okay, what we have seen today, we studied about George Hazel, we studied about the dialectics, we studied about what is synthesis. Remember this topic, revise this because you have questions based upon this topic. After that, we studied about rank. What is the contribution of rank? What is the contribution of Karl Marx in the historiography? Karl Marx also was from the Western world. Now, annual school feminist historiography and Michael Foucault we will study on later on. Okay, so is it clear up to now for everyone? PU Patil, Seema Patil, Dhanashri, Prerna, Apeksha, Vaishnavi, Dheeraj. What about Aryan? Okay, Maitreya, Aditya, Avigna. Avigna, are you there? Avigna Pawar. Avigna Pawar, am I audible to you? Okay, she is, I think, just joins the lecture and goes somewhere, I think. Because I never see her comment. Okay, here. Okay, all right. She may have some problem, network issue or other thing. So up to now, if anybody have any problem, you can ask me in the next lecture. Okay. Till that, revise the topic. Okay. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आता है, कोई को कोई डाउट आता है तो मुझे पूछ सकते हैं आप।
तो आज के लिए बस करते हैं हम, और नाउ गुड बाय टू एवरीवन, टेक केयर, यू कैन लीव द क्लास नाउ। हॅलो सर. हॅलो. हॅलो. हा, मला सर गुगल क्लासरूमला पाठवायला येत नाही मला. व्हॉट्सअपला पाठवू का तुम्हाला स्वाध्याय सोडवलं? ओके, ऑल राईट. तू एक काम कर, यू कॅन डू वन थिंग. तुम्ही ना टकले सरांना कॉन्टॅक्ट करा एकदा, हा, की मला गुगल क्लासरूम मध्ये ऍड करा म्हणून. ओके. बर. मला म्हणजे माहीतच नाही ते गुगल क्लासरूम. तरी पण मी तुम्हाला पाठवू व्हॉट्सअपला. ओके ओके, चालेल. माझा कॉन्टॅक्ट नंबर आहे का तुझ्याकडे? हा, आहे की. ओके, ऑल राईट ऑल राईट. त्यावर पाठवलं तरी चालेल. परंतु चालेल. तुम्ही वैशाली मॅडम किंवा संतोष सर जे आहेत टकले सर, त्यांच्याशी एकदा कॉन्टॅक्ट करा, की आम्हाला गुगल क्लासरूमचं काही माहित नाही म्हणून. ओके. ठीक आहे. ठीक. ऑल राईट.